Hello everyone. Today we are going to learn the chapter number 14 from grade 10 science, and that is source of energy. So what is a good source of energy? So a source can be classified as renewable and non-renewable source of energy. Any source of energy that does not get depleted or get exhausted is considered a good source of energy and are usually called a renewable source. As we all know that energy have a two type of form, and that is renewable energy and non-renewable energy. Renewable energy, that means we can reuse that energy, that is renewable, and a type of energy which cannot be reusable, that is non-renewable. Now what is renewable energy? So any source of any source of energy that does not get depleted or get exhausted is considered as a good source of energy. That means a type of source from which you can continuous get energy without any depletion and without the fear of कंप्लीशन दैट कि ऐसा कोई सोर्स कि जिनमें से आपको कंटिन्यूअस एनर्जी मिल पाए, जिसका कभी ख़त्म होने का डर ना हो. दैट टाइप ऑफ सोर्सेज आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड यू कैन से दैट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. Now, features of good fuel. If you are talking about a good source of energy, then you must have to know that what are the features of good fuels, कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है अच्छे फ्यूल्स की. So it should have high calorific value. If we are talking about calorific value, then the high calorific value is therefore good fuels. Now you know that what is calorific value. Already in grade 8 you will study about that जितनी भी calorific value high होगी उतना वो fuel अच्छा होगा. Now it should not produce smoke while burning. So at a time when it is burned, it may not produce smoke, and this prevents air pollution. Cheap and easily available. That type of source can easily available and cheap also, कि सस्ता भी होना चाहिए और मार्केट में easily available भी होना चाहिए. Then easy to handle and safe to transport, कि उसको handle करना easy होना चाहिए और transport करना भी safe होना चाहिए. मतलब एक place से दूसरी place पे ले जाना हो, that can be safe. Then convenient in स्टोरेज की, और उसको स्टोर करके रखना हो तो कन्वीनियंट होना चाहिए कि आप स्टोर करके रख पाने चाहिए, डेंजरस जैसा नहीं होना चाहिए. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल्स. देन द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज फॉसिल फ्यूल्स. So these are the fuels formed from remains of dead plant and animal under the earth crust due to excessive pressure and temperature for millions of years. So what is fossil fuels? That we already know that a type of fuel which is formed from dead plants and animal under the crust of earth. कि भाई उस टाइप का फ्यूल जो डेड प्लांट और डेड एनिमल्स में से बना है, जो बहुत सालों तक ज़मीन के नीचे दबे हुए थे और फिर उनमें टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए उनको डिकम्पोज होने में, और फिर उसमें से जो फ्यूल बना है दैट इज़ फॉसिल फ्यूल्स. फॉर द एग्जाम्पल कोल, petroleum products, then whatever it was, petrol, diesel, kerosene, LPG, whatever, and a natural gas. These are the fossil fuels because these all obtained from beneath of earth. Done. Now what is the disadvantage of fossil fuels? So they are a non-renewable source of energy. Although we are using randomly fossil fuels, we are using randomly, petroleum products we are using, coal we are using, and natural gas we are using. These all are fossil fuels, but they are non-renewable resources. मतलब कि उनकी इन फ्यूचर ख़त्म हो जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, वो एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, कि वो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है. देन ग्रीन हाउस इफेक्ट. बिकॉज ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल्स द स्मोक विल जनरेट, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्मोक air pollution can occur, and because of air pollution the greenhouse effect can generate, and then because of this global warming can be happen, and a lot of smoke. कि भाई here I mention one image कि मोस्टली सिरामिक वगैरह में देखिए तो क्या होगा कि ये फ्यूल की वजह से बहुत सारा धुआं निकलेगा, बहुत सारा स्मोक निकलेगा, एंड इट विल हार्म एयर. सो एयर पॉल्यूशन हो जाता है. डन. सो दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. Now, thermal power plant.
ये सारी चीज़ें आपको फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल मिल रहे हैं। एक आपने पढ़ा और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ा। अब ये उनकी कैटेगरी, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स यूज होता है। दिस वन इज अ थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट द कोल इज बर्न इनटू द फर्नेस ऑफ स्टीम बॉयलर, high pressure steam is produced in the boiler. In turbine, this steam force rotate the turbine blades. As the turbine turns, it causes the generator to do its work and create electricity. कि मोस्टली जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होता है और मोस्टली कोल का यूज़ होता है। जो कोयला हम यूज़ करते हैं ना, उसका यूज़ होता है। अब हाउ इट वर्क्स कि वो क्या करेंगे, फर्स्ट पहले उनके जो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, दे कैन burn coal in that boiler and then high pressure steam is produced in the boiler। कि आप कोल को गर्म करोगे, देन हाई प्रेशर स्टीम जनरेट होगी, बहुत ही ज़्यादा स्टीम जनरेट होगी, दैट हैव अ हाई प्रेशर। एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई प्रेशर स्टीम, उनके साथ क्या हुआ, बॉयलर के साथ एक टर्बाइन जॉइंट किया होगा और इतनी हाई प्रेशर की वजह से, स्टीम की वजह से क्या होगा, वो टर्बाइन रोटेट होगा। और जैसे जैसे टर्बाइन की ब्लेड्स रोटेट होती जाएगी, उसकी वजह से क्या होता जाएगा, जनरेटर वर्क करता जाएगा। और जनरेटर वर्क करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में कोल में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्योंकि अगर वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग कोल। बट ये एक डिसएडवांटेज भी है कि कोल की वजह से एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है। Now, the transmission of electricity is more efficient than transporting coal or petroleum over the same distance. Therefore, many thermal power plants are set up near a coal or oil fields. अब ये लोग कोल क्यों यूज़ करते हैं, तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो बहुत ही दूर होती है, तो वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, थोड़ा एफिशिएंट नहीं रहता है। दैट्स वाई ये लोग क्या करते हैं, कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर ही अपनी इंडस्ट्रीज चलाते हैं। और मोस्टली इनकी इंडस्ट्री ऐसे एरिया में लोकेटेड होती है जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो और आजू बाजू में कहीं पे पेट्रोलियम की या तो कोयल की जो फील्ड होती है ना, ऑयल फील्ड्स होती है जहाँ पे, या तो फिर कोल फील्ड्स होती है, माइन वगैरह होती है, उनके आजू बाजू में ही ऐसे प्लांट्स वो लोग जनरेट करते हैं क्योंकि उनको कोल वगैरह मिलना ईजी हो जाए। डन। सो ये था थर्मल पावर प्लांट। ना अ मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक प्रोडक्शन की आगे जो आपने इमेज मैंने आपको समझाया ना कि बॉयलर में कोल बर्न होगा, फिर वहाँ से टर्बाइन घूमेगा, तो वो किस तरीके से होता है। हियर आई मेंशन वन इमेज, दिस इमेज इज ऑल्सो इन योर टेक्स्ट बुक। सो हाउ इट इज़ वर्क, यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल लेके आपको बताया, बट आप अज्यूम कर लो कि इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, यहाँ पे बड़े बड़े टर्बाइंस होंगे जिनको हीट मिलेगी तो उनके अंदर क्या होगा, कोल बर्न होगा। यहाँ पे आपको प्रेशर कुकर का एग्जांपल लेके समझा रही हूँ कि भाई प्रेशर कुकर है, उसको आपने हीट किया, गरम किया, ठीक है। तो जैसे प्रेशर कुकर में से भी वो सीटी में से हवा निकलती है ना, तो एट ए सेम वे उसमें से हवा निकलेगी, तो उसके साथ आपने क्या किया, स्टीम पाइप को अटैच कर दिया है और वो स्टीम पाइप सीधा टरबाइन के ऊपर गया है। तो जैसे ही गर्म हवा निकलेगी तो वो टरबाइन के ऊपर जाएगी और टरबाइन क्या होगा, घूमेगा। अभी जैसे ही टरबाइन घूमेगा इट विल डायरेक्टली कनेक्ट विद डायनेमो और एल्स यू कैन से जनरेटर। तो वो टरबाइन सीधे जनरेटर के साथ या तो डायनेमो के साथ ज्वाइंट होगा और डायनेमो और जनरेटर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे एंड उस इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को अभी आप थर्मल पावर प्लांट के साथ अज्यूम करो कि भाई प्रेशर कुकर है, वहाँ पे बॉयलर होगा, बॉयलर को नीचे से हीट मिलेगी और क्या होगा कि नीचे से हीट मिलने की वजह से उसके अंदर स्टीम जनरेट होगी, वो स्टीम फिर बॉयलर में से टरबाइन के ऊपर जाएगी, टरबाइन में से जनरेटर में जाएगी और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज द वे बाय विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट। Now, after learning thermal power plant, now we will learn about hydro power plant कि हाइड्रो पावर प्लांट होते क्या है। तो यहाँ पे आपको इमेज दिख ही रही है, कहाँ की इमेज है ये, दिस वन इज़ अ इमेज ऑफ डैम, कि भाई डैम के आसपास के एरिया की इमेज है। तो यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सो हाइड्रो पावर इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग द एनर्जी ऑफ फॉलिंग एंड रनिंग वाटर के। हाइड्रो पावर प्लांट होता क्या है, तो हाइड्रो पावर प्लांट, इस नेम को अलग करो आपको पता चल जाएगा। हाइड्रो दैट मीन्स
वाटर, और पावर प्लांट कि भाई ऐसा पावर प्लांट कि जहाँ पे वाटर से एनर्जी मिले, दैट इज हाइड्रो पावर प्लांट। अब होगा क्या, हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर यूज होगा, बट कैसे टाइप का वाटर, आइदर इट इज़ अ फॉलिंग वाटर और एल्स इट इज़ रनिंग वाटर, कि भाई या तो वो फॉलिंग वाटर होगा मतलब कि ऊपर से कहीं पे पानी गिर रहा हो वैसा वाटर होगा, या तो फिर वो रनिंग वाटर होगा, जैसे समंदर में कैसा रनिंग वाटर होता है, नदी के अंदर रनिंग वाटर होता है, उसके जैसे। एंड इट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, आपके पास बहुत अमाउंट में है। देन ना वर्किंग ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, कि हाइड्रो पावर प्लांट वर्क कैसे करेंगे। सो डैम एंड रिजर्वर इज मेड ओवर अ रिवर टू कलेक्ट वाटर इन अ लार्ज अमाउंट। अब डैम जनरली होते कहाँ पे, कि रिवर के ऊपर बनाए होते हैं, कि भाई लार्ज एरिया में जहाँ पे वाटर का अमाउंट होगा वहाँ पे डैम जनरेट होते हैं। देन वाटर कमिंग ऑफ हाई स्पीड रोटेट द टर्बाइन विच इन टर्न एक्टिवेट्स अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होगा, हाई स्पीड में वाटर आएगा, हाई स्पीड में वाटर फॉल करेगा, तो नीचे जो टर्बाइंस रखे होंगे उन टर्बाइंस की ब्लेड्स के ऊपर पड़ेगा, और टर्बाइन क्या होगा, रोटेट होगा। टर्बाइन रोटेट होने की वजह से साथ में जो जनरेटर जॉइंट किया होगा उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होंगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। देन सम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जस्ट यूज अ स्मॉल कैनल टू चैनल द रिवर वाटर थ्रू अ टर्बाइन। और कहीं कहीं ऐसे भी हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं कि जो एक कैनाल फॉलो करते हैं, कि यूज अ स्मॉल कैनल टू चैनल द रिवर वाटर थ्रू अ टर्बाइन। के भाई बहुत सारे ने ऐसा भी क्या होता है कि आपका जो रिवर वगैरह है जहाँ पे आपने डैम बनाया वहाँ से एक छोटी सी कैनाल निकाल लेते हैं टर्बाइन को घुमाने के लिए स्पेशली, तो इस तरीके का भी वर्क हो सकता है ना। आगे आपको जो बोला ना कि एक कैनाल बना लेते हैं, तो वो किस तरीके से वर्क करता है, तो हियर यू कैन से और लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आपको रिजर्वर और इनटेक करके एक पॉइंट दिया है कि वो डैम वाला पोर्शन है, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ पे वो नीचे की साइड से एक कैनाल बना लेंगे, तो वहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे वाटर आता जाएगा। और फिर थोड़े आगे उन्होंने क्या किया होगा, जनरेटर रख दिया होगा, टरबाइन रख दिया होगा, तो जैसे जैसे टरबाइन की ब्लेड घूमेगी जनरेटर के साथ वो टरबाइन जॉइंट होगा, तो जैसे जैसे टरबाइन की ब्लेड्स घूमेगी वो जनरेटर क्या करेगा, फिर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और फिर वो एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइन तक पहुंचाई जा सकती है। और टरबाइन की घूमने की वजह से वो वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर वो उसी वाटर को आप कोई किसी भी रिवर के अंदर छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स वर्क करते हैं, किसी कैनाल बना के फिर टरबाइन को, और ये सारा काम ज़मीन के नीचे की साइड पे होता है, तो इस तरीके से टरबाइन रोटेट होके एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, और वो जो पानी का फ्लो एकदम हाई स्पीड था वो भी नॉर्मल हो जाएगा, और रिवर के फॉर्म में रिवर के अंदर वो फिर रिलीज हो जाएगा। डन। यहाँ पे भी आपको एक इमेज मेंशन करके दिएगी, राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो ऊपर कि भाई बहुत सारा पानी है, फिर वो पानी डैम के फॉर्म से नीचे आ जाएगा और फिर टर्बाइन वगैरह वर्क करेंगे। हियर इज ऑल्सो अनदर इमेज दैट हाउ डैम वर्क्स। नाउ एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट की, हाइड्रो पावर प्लांट के एडवांटेजेस क्या क्या है। सो फर्स्ट वन, इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की, अगर हाइड्रो पावर प्लांट की बात कर लो तो इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की, भी रिन्यूएबल है क्योंकि पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। वाटर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और वाटर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, हमें पैसे नहीं देने पड़ते। वो अलग बात है कि पानी की बोतल के हम पैसे देते हैं, वो जो फिल्टर वाला घर पे छोड़ने आता है, बट दिस वाटर कैन बी फ्री। सो दिस प्लांट्स आर पॉल्यूशन फ्री, और ये जो सारे प्लांट्स हैं वाटर प्लांट्स, नॉर्मल प्लांट नहीं, वो जो वो ट्री वाले पावर प्लांट की बात हो रही है, तो ये जो सारे पावर प्लांट है दिस आर पॉल्यूशन फ्री की, इनके थ्रू पॉल्यूशन नहीं होता। जैसे थर्मल पावर प्लांट के अंदर पॉल्यूशन होता है पर यहाँ पे नहीं होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड, और अगर आप डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से फ्लड आने की पॉसिबिलिटीज़ रुक जाती है। सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। नाउ एडवांटेज है तो साथ साथ में डिसएडवांटेज भी हो गए, क्योंकि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आर वाइसा वर्सा। सो नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। So first one, hydropower can be established in some certain location. It depends on the location of river, ocean, and also large area is required to build a
डैम की। अगर आपको हाइड्रो पावर प्लांट एस्टैब्लिश करना है देन यू हैव सम लार्ज लोकेशन की, आपको बहुत बड़ी जगह चाहिए और वो जगह भी आपको रिवर के आजू बाजू में और ओशन के आजू बाजू में कहीं पे चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आप प्रॉपरली डैम को बिल्ड कर पाओ क्योंकि जगह आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। देन वेजिटेशन सबमर्ज्ड बिलो डैम प्रोड्यूस्ड मिथेन विच लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जितना भी डैम प्रोड्यूस किया आपने तो नीचे की साइड में जो सबमर्ज हो जाता है दैट इज़ वेजिटेशन, कि वहाँ पे मिथेन गैस प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। तो इसकी वजह से फिर मिथेन गैस प्रोड्यूस हुआ तो फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।